it's a very important and burning subject like surrogacy, which we are going to discuss here. And we have a very eminent panel here today from different departments who are concerned departments, who are the stakeholders in this whole issue. And we would do this panel discussion. And before we start this discussion, I would like to briefly state, for the benefit of the students who are also participating here, what is surrogacy actually? I'm sure most of you are familiar, at least the mass communication department, we had an interaction in the morning. And I'm sure other departments, students are also familiar with this subject. It has been debated and discussed in the media for a very long time now. For the last 2 months at least, it's become very active debate has started there. This surrogacy, we are now talking about the gestational surrogacy, which is unlike the old term surrogacy, where a woman carries in her womb the child or a sperm of a man or a couple. When a couple is not, when a couple is there, they don't have, for certain reasons, either the problems of the woman or the man, the couple does not have a child. The baby is grown in the womb of another woman. That is who is called a surrogate mother. Now, the medical sciences have advanced so much that we have a situation where the couple, the mother and the father, both of them can claim to be the actual biological mother and father, and their fertilized egg is grown in yet another womb. I mean, this divine motherhood which was there earlier, and that is become just a carrier or a vessel where we are now, the medical sciences have advanced so much that it's a divided, I mean, this divine motherhood has been divided into a mother who gives birth, is a birth mother, and the actual biological mother and father will remain the same for that child. Now, I feel honored to invite the eminent panel and the anchor, moderator, Ashok Srivastav, and I request them all to come and take their seats here. And Sneha Banerjee, she is a social worker. Please come. And Dr. Rajiv Khanna ji, Dr. S.S. Trivedi, Dr. Anu Grover, Dr. Tarun. Not to forget, Dr. Tarun is a psychologist and is from the Behavioral Sciences Department. Please. Well, I suppose Dr. Ashok Srivastav doesn't need an introduction. He's been a journalist of quite eminence. He's been a national news, Doordarshan National News anchor for more than a decade now. And he has also, of course, came to limelight with various reasons, apart from the fact that he runs an excellent program on RTI, Janne Ka Hak. So it's a very, very popular program of Doordarshan. और आपने मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी का इंटरव्यूज भी किए थे, जो even before he became the Prime Minister, it was a very controversial. So, but he has done a lot of very eminent personalities interviews, and apart from that, this RTI program is very popular. And Sneha Bhargav, she comes from an NGO. She's a social worker who is following this issue very, very keenly. And of course, Dr. Rajiv Khanna doesn't need any introduction to our SGT University faculty and people. He's a very eminent advocate and is the director of law faculty, and is contributed immensely to various legal issues. And Dr. Tarun, a relatively younger faculty, but then he is also, we had a lot of interactions on this. He is going to speak to us about
the various issues concerning the social issues, where the psychological issues which will be affecting all the stakeholders in this issue. And of course, Dr. S.S. Trivedi, she is a very seasoned panelist and also a women doctor and a gynecologist. She is going to talk to us about all the major issues of IVF, in vitro fertilization, and all the concerned medical issues on this. And of course, not to forget Anu, this Anu Grover. We have invited her because she's nursing is a very important area of this whole surrogacy, and surrogate mothers are not only, probably presently not only provided with every medical care, but there are also a lot of good nursing, and they're really pampered lot of people, and the best nursing can happen to surrogacy mothers. With this introduction, I now hand over the panel अशोक श्रीवास्तव जी के हाथ में ये पैनल मैं सौंपता हूँ, और मैं सोचता हूँ ये इसको आगे बढ़ाएंगे. थैंक यू. बिग हैंड फॉर अशोक ऑन द पैनल. दोस्तों, आज की जो दुनिया है हमारी, वो बहुत तमाम तरह के खतरों का सामना कर रही है. आप सब जानते हैं अभी जिस तरह से भारत पाकिस्तान को लेकर माहौल गरमाया हुआ है. दुनिया ये कहती है कि भाई न्यूक्लियर वॉर का खतरा दुनिया के सामने है, दुनिया उससे भी ख़त्म हो सकती है. जिस तरह से पर्यावरण का हमने दोहन किया, शोषण किया, ये भी बात बार बार उठती है कि जिस तरह से लगातार ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हो सकता है दुनिया एक दिन ऐसे ही तबाह बर्बाद हो जाए. तो आज अगर हम देखते हैं तो इस दुनिया को तबाह करने के, बर्बाद करने की ताकत बहुत सारे लोगों में, लेकिन इस सृष्टि को खड़ा करने में, इस सृष्टि को, इस दुनिया को आगे बढ़ाने की ताकत जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक माँ में, सिर्फ एक माँ है जो इस सृष्टि को आगे बढ़ा सकती है. इसलिए कहते हैं कि जो जन्म देना है वो सबसे सुखद एहसास होता है. और अमूमन माना जाता है, मोटे तौर पर माना जाता है कि हर दंपत्ति, हर महिला जो है वो सृष्टि को आगे बढ़ाने की ताकत रखती है. लेकिन फिर भी आज भी दुनिया में इस वक्त करीब 5 करोड़ ऐसे लोग हैं, ऐसे दंपत्ति हैं जो बच्चा जो पैदा नहीं कर सकते. इंसान अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, मेडिकल साइंस और बाकी तकनीक, हमारे यहाँ इतनी सब चीज़ें आ गई हैं, तो इंसान अपनी ज़रूरतों के हिसाब से रोज़ नई नई चीज़ों का इजाद कर लेता है. और इसी तरह से सरोगेसी का भी इजाद हुआ, जिसमें साइंस ने, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, जैसा प्रोफेसर राघवाचार्य जी ने बताया कि किस तरह से एक और महिला की कोख में किसी और का बच्चा जो है आज जन्म ले सकता है. लेकिन जैसे मैंने कहा कि इंसान अपनी ज़रूरतों के लिए अगर कोई चीज़ इजाद करता है, तो इंसान का जो लालच है उसी इजाद के, उसी जो नया आविष्कार होता है, उसके हमें कुछ कुरूप चेहरे भी दिखाता है. तो सरोगेसी में भी ऐसा ही हुआ. मेडिकल साइंस ने जो इजाद किया था उसके कुछ कुरूप चेहरे हमने पिछले कई दिनों में देखे. और सबसे बड़ी बात यही कि भारत जो है सरोगेसी का दुनिया में सबसे बड़ा बाजार बन गया, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल साइंस सस्ती है, गरीबी है, जिसके कारण पश्चिम के बहुत से लोग जो धनवान दंपत्ति थे वो भारत आते गए. और भारत में ऐसा माना जा रहा है कि पिछले 10 सालों के अंदर 40,000 सरोगेट बच्चों ने जन्म लिया है. 40,000. और ये दुनिया में सबसे बड़ा जो है एक तरह का आंकड़ा है. और बहुत सारे लोग इसके विषय में नहीं जानते थे, लेकिन जब शाहरुख खान साहब ने भी इस तरह का एक प्रयोग किया, कुछ सेलिब्रिटीज़ ने किया, तो आम लोग भी इस विषय के बारे में जानने लगे. लेकिन ये विषय जो है, जब ये विवाद में आया और जब इस तरह से हुआ कि भारत एक तरह से इसका एक बाजार बनता जा रहा है, भारत में इसका बहुत कमर्शलाइजेशन हो रहा है, तब उसके बाद ये हुआ कि इसका नियमन होना चाहिए, इसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, इसके लिए कोई कानून नहीं है कि कैसे आएगा. दुनिया भर से लोग आते हैं, IVF क्लिनिक जो है वो पैसा बनाने की मशीन बन गई, और महिलाओं की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है. इस तरह के बहुत सारे जब इशू आए, तो अब जो है एक सरोगेसी रेगुलेशन बिल जो है वो कैबिनेट ने पास किया. लेकिन उस बिल को लेकर भी अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उस बिल को लेकर के
बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा बात यह आती है कि इस कानून को आप लागू कैसे करेंगे, और दूसरी बात सोशल एक्टिविस्ट और बाकी लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इस बिल में बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जो सही नहीं है। तो उन्हीं सब इशू पर हम डिबेट करेंगे। मैं परिचय सबसे हो ही चुका है, लेकिन एक बार फिर से मैं परिचय करा दूँ। स्नेहा बनर्जी जो है वो इसके ऊपर बाकायदा PhD इन्होंने इसी विषय पर करी है, समाज संस्था से जुड़ी हुई हैं, सरोगेसी पे लगातार काम करती हैं। डॉक्टर राजीव खन्ना एडवोकेट हैं हमारे साथ, इसके लीगल पहलुओं पर हम बात करेंगे। डॉक्टर तरुण हमारे साथ सोशल साइंटिस्ट हैं, इसके कुछ सामाजिक पहलू हैं और इसके कुछ अन्य पहलुओं पर भी हम बात करेंगे। डॉक्टर SS त्रिवेदी हमारे साथ हैं जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और अनु ग्रोवर जी है नर्सिंग से जुड़ी हुई। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर राजीव खन्ना, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ, क्योंकि ये एक बिल आया और ये चर्चा जो हिंदुस्तान में शुरू हुई, इस बिल को आने के बाद ये चर्चा थोड़ी सी और बढ़ी है। क्या आपको लगता है कानूनी रूप से एक बिल बनाना, एक कानून बनाना जो है ज़रूरी था, और क्या आप कानूनी रूप से इस बिल को ऐसा मानते हैं कि जो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो सकता है और जो बदलावों की ज़रूरत है इस विषय में, वो ज़रूरत के लिए जो है ये कारगर होगा? अब ये जो लॉ आया है, क्योंकि देखा गया है कि जितने भी लोग आ रहे हैं सब पैसे के दे के इंडियन वुमेन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और सबसे बड़ा सेंटर आनंद गुजरात में बन गया था। और जब से ये कानून का डर लगा है 2015 से कमर्शियल सरोगेसी मेडिकल काउंसिल ने बैन कर दी, तब से सबको डर लग गया इन सेंटर्स को, क्योंकि इसका व्यापार एस्टिमेट है सालाना 5,000 रुपया करोड़, 5,000 करोड़ रुपए का इसका व्यापार है गुजरात के अंदर, जो कि सारे डॉक्टर्स, क्लिनिक्स और फॉरेन करेंसी में आ रहा है। और एक्सप्लॉयटेशन महिला की है। कौन सी महिला की? गरीब महिला नहीं, पर जिनकी डिज़ायर है, गरीब हैं और डिज़ायर है कि वो सोसाइटी में अमीर बने, और कोक को बेच के उसके ऊपर क्या बीतता है, उसकी फैमिली में क्या बीतता है, ये सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं। राजीव जी, इन विषयों पर हम आएंगे, क्योंकि हमारे साथ अन्य पैनलिस्ट भी इन सारे विषयों पर हम विस्तार से भी जाएंगे। पर जैसे आपने एक तो गुजरात की बात की, जो आंकड़ा ये कहता है कि अगर भारत की, सिर्फ गुजरात के अलावा पूरे भारत की बात करें तो ये 63 अरब का व्यापार भारत में अकेले है। और भारत और थाईलैंड जो है, क्योंकि वो विकासशील देश हैं, यहाँ पर गरीबी ज़्यादा है, और इसलिए जो है यहाँ पर ज़्यादातर लोग आए। बार इस पहले में जाके जो मैं आपसे एक जो मैं बात चाह रहा हूँ, जिस पर आप सबको बताएं, वो ये कि कानूनी रूप से आपने कहा ये कानूनी एंगल को ध्यान रखते हुए जो आ रही थी ये बना, क्या आपको लगता है ये बिल जो है अपने आप में पर्याप्त है जो बना? मेरे हिसाब से सही है। दुनिया के 95% मुल्क है, देश है, जिसमें कमर्शियल सरोगेसी बिल्कुल बैंड है। और आपने देखा होगा पिछले हफ्ते से सारे न्यूज़पेपर में, मास मीडिया में चर्चा चल रही है। एक ब्रिटिश कपल ने सरोगेसी के से एक यहाँ पे बच्चा पैदा हुई, लिली उसका नाम है। वो मेडिकल टूरिज्म के वीज़ा पे आने देते थे, सरोगेसी से उनकी एक लड़की पैदा हुई है। वो आज की तारीख में 3 महीने की है। वो उसको ले जाना चाहते हैं वापस इंग्लैंड में, पर इंग्लैंड में कमर्शियल सरोगेसी अलाउड नहीं है, और इंग्लैंड वाले उस बच्ची को वीज़ा नहीं दे रहे। वो पेरेंट्स खुद वापस जा सकते हैं, बच्ची को यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। और ये अब बहुत बड़ा लीगल एंगल आ गया है दोनों कंट्रीज़ के आगे। और इंडियन गवर्नमेंट ने इस कपल को 7 अक्टूबर तक का उनका वीज़ा था, उसको एक्सटेंड कर दिया एज अ स्पेशल केस। लेकिन स्नेहा, आप क्या सोचते हो कि जाहिर तौर पर इसका कमर्शियल एंगल एक है, हालांकि राजीव जी ने भी कुछ और पहलुओं की बात की, लेकिन आप शायद उन पहलुओं पर विस्तार से और ज़्यादा बात कर पाएंगे। कमर्शियल एंगल से ठीक है, कमर्शियली अगर आप एक किराए की कोक एक बिजनेस बनता जा रहा है, उसको रोकना ज़रूरी है, लेकिन इसके अन्य भी पहलू हैं। तो आपको लगता है कि हम जिस दिशा में बढ़े हैं वो दिशा सही है? जब हम कमर्शियल सरोगेसी की बात कर रहे हैं तो इसमें कॉमर्स सिर्फ जो महिला सरोगेट के रूप में इस प्रक्रिया में जुड़ी हुई है, सिर्फ उसके हाथ में पैसा आना इसका कॉमर्स नहीं है। इस पूरे चीज़ में कमर्शियल सरोगेसी में इंडस्ट्री है, जिसके बारे में प्रोफेसर चारी ने भी कहा। तो इस बिल का क्लेम है कि वो कमर्शियल सरोगेसी पे बैन लगा रही है, पर ये सिर्फ वो टिप ऑफ
द आइसबर्ग कहते हैं ना, सिर्फ ये वही है कि जिस महिला के हाथ में पैसा आ रहा था उसके हाथ में पैसा नहीं जाएगा, पर इंडस्ट्री को बिल्कुल अनटच्ड छोड़ दिया गया है, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन समा रिसोर्स ग्रुप फॉर विमेन एंड हेल्थ का एक बड़ा क्रिटिक रहा है इस बिल के प्रति। उसका ये पहलू समझना ज़रूरी है कि जैसे प्रोफेसर चारी ने शुरुआत में ही ये अंडरस्कोर किया कि ये जेस्टेशनल सरोगेसी है, ये ट्रेडिशनल सरोगेसी नहीं है। तो जेस्टेशनल सरोगेसी की प्रक्रिया को करने के लिए जो टेक्निक है IVF की, वो सेंट्रल है। दुनिया में सबसे पहला IVF से बच्ची पैदा हुई थी UK में, ये क्लेम है 1978 में, और उसी समय बहुत काफ़ी कंट्रोवर्शियल केस रहा था। डॉक्टर त्रिवेदी जानेंगी, डॉक्टर सुभाष मुखर्जी का क्लेम था कि इंडिया में भी IVF से बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड फर्स्ट IVF चाइल्ड इन इंडिया वाज बोर्न इन 1983। 1983 से 2016 ये पूरा जो IVF और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जिसमें और भी कई तरह की टेक्नोलॉजीज आती हैं, ये पूरा जो दायरा है कानून से बाहर है। तो सिर्फ सरोगेसी को टच करने से हम एक्चुअली लॉ के जरिए कुछ नहीं कर रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि जो IVF क्लिनिक्स हैं जो इस तरह के, उसके व्यापार पर कोई अंकुश नहीं लगाने में ये लॉ कामयाब नहीं होगा। ये हम प्रिलिमिनरी तौर पे कह सकते हैं, क्योंकि एक और नोट करने वाली बात ये है कि सरोगेसी बिल 2016 अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो हमने किसी ने बिल पढ़ा नहीं है, तो ये हमारा एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट है। एडवोकेट खन्ना ने कहा कि लेकिन जिस तरह के प्रावधान इसमें जो हमें सुनने को मिल रहे हैं, जो सुनने को मिले हैं, जो अब तक मीडिया में आए हैं, अगर उससे देखें तो जो रेगुलेट करने की कोशिश है कि भाई कुछ कानून बनाए गए हैं, तो जाहिर तौर पर उन कानूनों का उल्लंघन करना किसी भी क्लिनिक के लिए इतना आसान नहीं होगा। एक्चुअली बहुत आसान है, क्योंकि इंडिया में ये जेस्टेशनल सरोगेसी और IVF क्लिनिक्स का जो इंडस्ट्री के तौर पे इमर्जेंस है वो इसी मिलेनियम का है, 2000 के बाद का है, और इंडिया में लीगल रेगुलेशन की कोशिश भी उसी दशक से शुरू होती है। 2013 का जो बिल है उसका जो जन्म है वो 2002 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कुछ गाइडलाइंस बनाई थी, नेशनल गाइडलाइंस फॉर एक्रेडिशन ऑफ ART क्लिनिक्स। 2002 में फॉर्मुलेट हुई, वो 2005 में पब्लिक डोमेन में आई, पर वो केवल गाइडलाइंस मात्र हैं, they are not legally binding, they are only directives, they are not legally binding, so the clinics can voluntarily submit themselves to that, which many do। आप अगर मीडिया में भी डॉक्टर्स के इंटरव्यूज देखेंगे या जो उनके वक्तव्य पब्लिक डोमेन में है, बहुत से कर रहे हैं, लेकिन कोई वायलेशन अगर होता है तो कोई ऐसा जरिया नहीं है जिसके यूज से हम उन्हें अकाउंटेबल ठहरा सके। आपने देखा, आप लोगों ने सुना होगा, क्या आप लोगों ने यूमा शेरपा का नाम सुना है? यूमा शेरपा एक 21 साल की महिला थी जो एक डोनर के तौर पे काम कर रही थी, और एक डोनेशन की प्रक्रिया के दौरान उनका निधन हुआ। अब there was a case, Sama also followed it up with Medical Council of India. The result of the case was her death was not related to the process of egg donation itself, but related medical complications. अब ये related medical complications के लिए किसको अकाउंटेबल ठहराया जाए? तो IVF और ARTs के जो व्यापक स्वास्थ्य पे प्रभाव हैं, एक तो ये टेक्नोलॉजी बड़ी नई है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म स्टडीज़ नहीं है, तो महिलाओं के स्वास्थ्य पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, और अगर उसका कोई कुप्रभाव पड़ रहा है तो who is responsible, who is accountable? मैं उस पर आऊँगा, लेकिन जो आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि इसमें जो क्लिनिक्स हैं, जो चिकित्सा जो डॉक्टरी पेशे से जुड़े हैं, उस पर कोई लगाम लगने की संभावना नहीं है, जैसा आपने कहा। डॉक्टर त्रिवेदी, आप को क्या लगता है, क्योंकि ये इशू जो है इसमें बहुत सारा एक पहलू ये भी है कि ये जो क्लिनिक्स हैं जो मशरूम की तरह उग गए और इसमें डॉक्टरी पेशे से जुड़े लोग हैं, उनके ही कारण जो है ये स्थिति आज यहाँ पर इस तरह से पहुँची। तो आप इसको कैसे देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि इस पर एक्चुअल में जो IVF क्लिनिक और इन सब जो बाजार बना रहा है उस पर नियंत्रण नहीं लग पाएगा? जैसे कि आपने कहा, सरोगेसी पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर IVF क्लिनिक्स, वो तो बहुत बड़ा है,
ही रेगुलेशन चाहिए है, और जैसा कि कहा जा रहा है कि ये बहुत सालों से पेंडिंग है, बट इट हैज़ नॉट बीन पास। सो वो प्रॉब्लम अपनी अलग है। सरोगेसी एक अलग प्रॉब्लम आ गया। IVF था जो लोग करवा रहे थे वही, यहाँ पे एक और महिला इन्वॉल्व है। जहाँ तक मेडिकल साइंस का सवाल है, सरोगेसी बहुत अच्छी चीज़ है। देयर आर वुमेन जिनके यूट्रस नहीं है, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं, तो उसको मेडिकली इंडिकेटेड है। और मेडिकल साइंस का एम ही यही है कि जिसको ज़रूरत है उसको हम जो अवेलेबल है, बेस्ट अवेलेबल है, वो उनको दिया जाए। सो कई लोगों के लिए सरोगेसी मैं कहती हूँ कि बहुत ज़रूरी है। लाइक मेडिकल ट्रीटमेंट, इट इज़ जिसको भी मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए उसको हम देते हैं, तो व्हाई नॉट टू दैट। तो इनफर्टाइल कपल्स हैं जिनके पास यूट्रस नहीं है या जो बच्चा नहीं पैदा कर सकते हैं, जिनका यूट्रस निकल गया है, उसके लिए सरोगेसी ही एक ऑल्टरनेटिव है। एंड देयर इज नो रीज़न व्हाई वी शुड नॉट अलाउ सरोगेसी इन दोस टाइप। मैं इसको अलाउ करने की डॉक्टर साहब बात ही नहीं, क्योंकि इस पर बैन की तो अभी कोई बात ही नहीं है कि हिंदुस्तान में इसको पूरी तरह से बैन किया जाए। मैंने तो सवाल इसलिए किया क्योंकि ये आविष्कार जो है, ये इजाद जो है वो ठीक है, वो ज़रूरत की इजाद है, लेकिन लालच ने इसको कहाँ पहुँचा दिया वो एक अलग। वही मैं कह रही हूँ कि वो तो IVF तो बहुत ज़रूरी था। बहुत सारे लोग आज बच्चे पैदा कर सकते हैं, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड एंड एडवांसमेंट्स इन द मेडिकल साइंस। मैं इस पर आऊँगा, लेकिन राजीव जी आप स्नेहा जी की इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि आपने शुरू में कहा कि बिल जो है पर्याप्त है, काफ़ी है, लेकिन स्नेहा जी इससे बिल्कुल सहमत नहीं। उनका कहना है कि जो ऐसे है, हेलो, ऐसे है कि नंबर 1 नोट किया गया है कि जितनी भी क्लिनिक्स हैं, अगर वो कमर्शियल सरोगेसी करेंगे, उनकी वॉयलेशन के लिए 10 लाख का पेनल्टी और 10 साल तक की ट्रिगरस इम्प्रिजनमेंट का इस बिल में किया है। सिमिलरली ये टोटल कमर्शियल सरोगेसी को बैन किया गया है, और इसके नतीजे से पिछले साल से तकरीबन साल हो चला, 11-12 महीने हो गए हैं कि जितनी भी ये क्लिनिक्स हैं ये अब आउटसाइड इंडिया जा रही है। सारा बिजनेस अब कंबोडिया पहुंच गया है, इंडिया से कंबोडिया पहुंच गया है, और नई बैंकॉक की बात, थाईलैंड बैंकॉक की बात, वहाँ पे सरोगेसी प्रोहिबिटेड है, कमर्शियल सरोगेसी प्रोहिबिटेड है। सेक्स इज अ वेरी लिबरल एंड अ वेरी पॉपुलर थाईलैंड में, बैंकॉक में इज अ टूरिस्ट रिजॉर्ट, बट नॉट सरोगेसी। Cambodia is the new hub. Cambodia is the latest hub. Cambodia is the latest hub because all these clinics will be out of business. And they were relying solely not on Indian families, particularly on foreigners who were coming, because in most of the countries, 98% of the countries have banned commercial surrogacy. That you cannot buy coke. Yes, it's a reality. आपने जो बात कही, जाहिर तौर पर कमर्शियल इसका जो व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा था उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए, और आप ये कह रहे हैं कि जो बिल है उसमें इस तरह के प्रावधान है। हालांकि जैसे स्नेहा ने भी कहा, जाहिर तौर पर अभी हम जो मीडिया में जो बातें आई हैं हम इसी के आधार पर बात कर रहे हैं, और अब ये उम्मीद ही कर सकते हैं कि बिल अपने आप में पर्याप्त होगा। हालांकि कुछ प्रावधानों पर इसकी और बात करूँगा मैं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर तरुण, एक बात जो कही डॉक्टर त्रिवेदी ने, उन्होंने कहा सरोगेसी ज़रूरी है और एक मेडिकल साइंस के हिसाब से एक अच्छी इजाद है, तो ठीक है, इसके पूरी तरह से प्रतिबंध के खिलाफ कोई नहीं है। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो ये कहता है कि भाई जिस तरह से आप ह्यूमन ऑर्गन का बिजनेस करते हैं, ये उस तरह का बिजनेस है। कोख जो है किराए पर देना, बहुत से लोग ये कहते हैं कि इसमें पैसे के लिए कोख किराए पर देना, इसके मानवीय पहलू भी हैं, नैतिक पहलू भी हैं, तो वो कहते हैं कि ये एक तरह का अंग का व्यापार है। क्या इससे आपको लगता है कि खास करके जो भारतीय माइंडसेट है उसके हिसाब से अगर इस बात से मैं थोड़ा एग्री करता हूँ, बट अगर हम इसको हेल्थ कंसर्न्स के लिए देखें और अगर हम देखें कि ह्यूमन नीड्स के लिए अगर हम नज़रिए से देखें तो ये एक ज़रूरी चीज़ रहेगा, क्योंकि हमें बहुत से ऐसे परिवार हैं जो बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है ताकि वो एक अपने जो एक इंस्टिंक्ट रहता है, पेरेंट इंस्टिंक्ट रहता है कि वो एक मदर बनना चाहते हैं, फादर बनना चाहते हैं, उसके नज़रिए से देखा जाए तो ये उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए और उनके समाज के नज़रिए से भी देखा जाए तो वो उनके लिए काफ़ी हेल्दी रहेगा। इसमें ये है कि प्रेशर बहुत रहता है, अगर एक बच्चा नहीं हो रहा है, हम एक कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी में रहते हैं इंडिया में, जो कि अगर हम बाकी कंट्रीज़ को जैसा कंपेयर करते हैं, UK या अमेरिका से हम कंपेयर करते हैं, वो काफ़ी इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज़ हैं
वहाँ पर शायद उनका एक अलग मायने रहते होंगे सरोगेसी कराने के, बट हमारे यहाँ पर सोशल प्रेशर्स बहुत रहते हैं। हमारे यहाँ ये रहता है कि बच्चा नहीं हो रहा है तो परिवार पर बहुत जोर है, परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। तो उस नज़रिए से देखा जाए, अगर सरोगेसी में जो कि जेस्टेशनल सरोगेसी एक ऐसा तरीका है जिसमें बच्चा जो है वो उन्हीं बायोलॉजिकल पेरेंट्स का रहता है जो बच्चा चाहते हैं। सिर्फ एक सरोगेट मदर की ज़रूरत है, एक एक्स्ट्रा मदर की ज़रूरत है जो उसको सिर्फ कैरी कर सके अपने वूम में, अपनी कोख में। तो उस नज़रिए से बच्चा वो उन्हीं का रहता है, तो उनके पूरे परिवार को आगे बढ़ाने के लिए ये एक अच्छा कदम है। इसमें हमें, अगर हम भले ही उसको देखें कि इसका बाजारीकरण हो रहा है, हम इसको एक ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, तो लीगल पर्सपेक्टिव पे या हम दूसरे इसको कंट्रोल करने के नज़रिए से देखें तो शायद सही हो सकता है, बट मेडिकल साइंस इसे नहीं, इस तरह से नहीं देखेगा। इनफैक्ट साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी कोई भी एरिया इस तरह से नहीं देखेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि इससे हम सिर्फ उसका एक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं एक परिवार, एक पूरा एक फैमिली और एक पूरी एक जनरेशन जो है वो सुधर रही है, उसका पूरा जो स्वास्थ्य है उस पूरे परिवार का, उसमें खुशियाँ आ रही हैं। उस नज़रिए से ये एक अच्छा स्टेप है। आप स्नेहा जी कुछ करेंगे कि सेहत से जुड़ी बात आ रही है महिलाओं के, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो जो बिल की बात है, बिल की बात में कुछ और पहलुओं पर बात करें उससे पहले महिलाओं की सेहत से जुड़ा। स्नेहा जी आप अपनी बात रखिए, फिर मैं एक सवाल जो है डॉक्टर त्रिवेदी से इसी संदर्भ में पूछा। जी, मैं इस सरोगेसी की प्रक्रिया में दो नोड्स को अलग करके थोड़ी सी बात रखना चाहूँगी। एक है इसमें कपल जिनको बच्चा चाहिए और एक है सरोगेट मदर। अब जो कपल की बात हो रही है, इसमें इनफर्टिलिटी या अनुर्वरता जिसे कहा जाता है मेडिकल टर्म्स में, उसे एक रोग या एक डिजीज़ के तौर पे देखा जाता है। लेकिन अब आप अगर एक व्यापक साइंटिफिक रिसर्च देखेंगे तो हर एक स्पीशीज़ जो इस प्लैनेट में है उसका कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन इनफर्टाइल होता है, ये हर स्पीशीज़ में है। It's only human beings who try to address their infertility using science, because we have access to science. लेकिन इसमें जिस बात पे ज़्यादा रोशनी नहीं पड़ पाती वो ये है कि जेंडर का जो कंस्ट्रक्शन है एक सोसाइटी में, कि एक औरत को अधूरा माना जाता है जब तक वो माँ ना बने, या एक पुरुष के पौरुष पे प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है अगर वो पिता ना बन सके। तो इस बात पे भी एक समाज के रूप में, एक रिस्पॉन्सिबल समाज के रूप में हमें डिबेट की ज़रूरत है कि क्यों सोशल स्टिग्मा या सोशल प्रेशर हो। हम ये मान के चले कि सोशल प्रेशर है तो इसके लिए ये बात सही है, तो उस तौर से तो सोशल प्रेशर इस बात पर भी है कि लड़का ही होना चाहिए। तो लेकिन हमारे देश में ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाती है जो कहती है कि पुरुष और महिला दोनों बराबर हैं और क्यों पुत्र पैदा करने पर ज़्यादा फोकस रखा जाए। उसी तौर से अगर महिलाओं को विक्टिमाइज किया जा रहा है सोशल प्रेशर के तौर पे कि उनका खुद का ही बच्चा हो, बच्चा होने पे किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें पिक्चर से एडॉप्शन हट जाता है, इसमें पिक्चर से ऑल्टरनेटिव जो तरीके हैं फैमिलीज बनाने के वो हट जाते हैं। महिलाओं के लिए शादी को भी कंपलसरी देखा जाता है। अडॉप्शन का कानून अगर सिंगल विमेन सिंगल मैन के लिए अडॉप्शन परमिट करता है तो क्यों IVF का एक्सेस आप शादी के दायरे में बांध के रखें। ये बहुत से ऐसे फंडामेंटल या मूलभूत प्रश्न हैं जिन पे भी बातचीत करने की ज़रूरत है, और वो शायद हम सिर्फ कानून के दायरे में रह के नहीं कर सकते, और बिल शायद सक्षम भी नहीं है इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए। अब रही बात दूसरे नोड की, फंडामेंटली जो आप सवाल उठा रही हैं उसमें क्या आपको लगता है कि ये सरोगेसी की बात करना यही गलत है? आपको लगता है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं शाहरुख खान को क्या ज़रूरत थी तीसरे बच्चे के लिए सरोगेट बच्चे की, वो चाहते हैं अगर उनके ऑलरेडी 2 बच्चे थे वो चाहते थे किसी को गोद दे सकते थे, और आपके पास एडॉप्शन का भी विकल्प है, आप अपने परिवार को एडॉप्शन से भी बदल सकते हैं। क्यों हम ये इस बात के लिए जोर डालें जो आपने बिल्कुल सही कहा कि पुरुष जो है वो तभी उसका पुरुषत्व होगा जबकि वो बच्चा पैदा कर सकता है, महिला जो है तभी मानी जाएगी जब वो, तो क्या हमें दूसरे विकल्पों पर भी ज़्यादा बात करनी चाहिए? देखिए, जब समाज में विकल्प मौजूद होते हैं तो सभी विकल्पों पे बात करनी चाहिए, और इसमें भी ये बात करनी चाहिए, जैसे बार बार ये बात आती है कि 95% देशों में कोई चीज़ अगर लीगल नहीं है तो यहाँ भी नहीं होनी चाहिए, पर मुझे लगता है कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ की जो बात है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। वैसे तो विश्व भर में अगर आप देखें तो शायद 50% से ज़्यादा जगहों में होमोसेक्सुअल मैरिजेस को रिकॉग्निशन है, पर हमारा देश क्यों पीछे है उसमें, है ना? 377 still criminalizes homosexuality or unnatural sex in that sense. तो अगर people who want to have families which look very different,
उनके लिए क्यों ना हम सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें। तो इस बात पे मैं ये प्रश्न उठाना चाहूँगी कि प्रॉब्लम इस बिल को किस चीज़ से है। प्रॉब्लम इस बिल को सरोगेसी से नहीं है, प्रॉब्लम इस बिल को सिर्फ कमर्शियल सरोगेसी से है, वो भी कौन एक्सेस कर रहा है उसके ऊपर। अब ऑल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी की आप बात करें तो ऑल्ट्रुइस्टिक सरोगेट कौन बनेगी? महिला जो परिवार से हो। तो हमारे देश में और विश्व भर में जो नारीवादी आंदोलन रहा है उसने चीख चीख के ये कहा है कि द पर्सनल इज पॉलिटिकल। परिवार भी एक ऐसी जगह है जहां महिलाओं का शोषण होता है। ठीक है, नहीं आप तो महिलाओं का शोषण अगर एड्रेस करना है तो वो इस तरह से नहीं हो सकता। आप इस बहस को एक अलग नया एंगल दिया है, लेकिन मैं अभी उस एंगल में बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ कि जो स्नेहा जी ने कहा कि भाई क्यों हम इस तरह की सोच ही क्यों सरोगेसी, आपको सरोगेट बच्चा ही चाहिए ये या फिर बच्चा ही चाहिए तो आपको जो है उसके लिए एक महिला का वो महिला तब पूरी होगी जब वो बच्चा पैदा कर लेगी, और पुरुष तब उसका पुरुषत्व होगा जब वो बच्चा पैदा कर लेगा। तो ये समाज में जो सोच है इसको भी तो बदलने की जरूरत है कहीं ना कहीं। मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि समाज की सोच हम बदलने की बात अक्सर करते हैं, बट वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि उस समय हमें बहुत वर्गों तक और बहुत अलग अलग डीप रूट्स और लेवल तक हमें जाना पड़ता है। जब ये मुश्किल है, इसलिए आप इससे सहमत नहीं है या फिर आपको लगता है कि ये मैं कहूँगा कि वो अगर हम शॉर्ट टर्म पर्पस पे अगर हम देखें, अगर हमें आज अगले कुछ 1 साल या 2 साल के लिए अगर हमें कुछ प्लान करना हो, हमें बहुत लॉन्ग टर्म में जाकर नहीं देखना है। मानसिकता बदलने के बाद शायद हमें बहुत सालों लग सकते हैं, शायद 2, 10, 20, 30, 40 साल लग सकते हैं। और हम हर अलग अलग वर्ग को, भारत के हिंदुस्तान के हर अलग अलग वर्ग को अगर हम सिर्फ एक सोच बदलने के लिए ही अगर हम उन्हें अप्रोच करने लगे तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल काम होगा। पर अगर कोई दंपति, अगर कोई कपल मैरिज करता है और वो उनका एक अपना एक नेचुरल एक नीड है, इंसान को जैसा जो बना है उसे बनने में कई सदियाँ, कई मिलेनिया लगे, तो हम उसका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, नेचुरल नीड है कि वो बच्चा चाहता है, क्योंकि उसने शादी की है। इनफैक्ट शादी करने के लिए तो मैं आपको इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं इस बिंदु पे आगे बढ़ा तो फिर स्नेहा जी बहुत कुछ कहना चाहेंगे और ये बिंदु अपने आप में एक डिबेट का विषय बन जाएगा। इसलिए फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा विराम देता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये एक बहुत वैलिड बिंदु है और इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल जो हम विषय है उसको थोड़ा सा अगर मैं समेटूँ तो डॉक्टर त्रिवेदी, सरोगेसी पर जो सबसे बड़ी जो चिंता है, जो सबसे बड़ा एक पहलू है, वो इसमें उस महिला का है जिसकी कोख जो है, जिसकी कोख में बच्चा जन्म लेता है, और उसकी मर्जी, उसकी सेहत, ये दो विषय जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब सेहत की बात होती है तो इसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं। ठीक है, एक महिला को जैसा मैंने पढ़ा भी कि उसको 5 लाख 6 लाख रुपए मिल जाते हैं, उसकी ठीक से केयर हो पाती है। तो क्या इन बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक महिला की सेहत से इस मामले में कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा? दरअसल नहीं, वो तो ज़रूरी है कि हमारी रेगुलेशन हो, नहीं तो अदरवाइज तो हम पता ही नहीं कर पाएंगे किस किस का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कितने बच्चे उसने सरोगेसी लिए हैं। तो लिमिटेशन हैज़ टू बी देयर, रेगुलेशन हैज़ टू बी देयर, और हम लोगों पे नहीं छोड़ सकते कि उन्होंने मदर की फिटनेस देखी है कि नहीं देखी, वो हाई रिस्क तो नहीं बन जा रही है। सो ये सब चीज़ें तो देखना बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है लॉ होने में कोई इसमें बुराई नहीं है, बिकॉज IVF क्लिनिक्स में जो हो रहा है वो भी हम नहीं चाहते होना चाहिए। सब तरीके की चीज़ें हो रही है, किसी का स्पर्म, किसी का एम्ब्रियो, हाउ मेनी ऑफ देम आर डोनेटिंग। सो आई थिंक रेगुलेशन तो 100% चाहिए इसमें, और सरोगेसी में भी चाहिए। IVF तो अलग ही प्रॉब्लम है, उसका तो जैसे मैडम ने कहा उसका तो बिल्कुल अलग है, बट अभी तो हमने बहुत छोटा पार्ट लिया सरोगेसी का, और इसमें कोई मतलब नहीं है कि हमारी लॉ ना हो और इम्प्लीमेंट ना हो। और जैसे कमर्शलाइजेशन की बात है तो नेचुरली कमर्शलाइजेशन तो नहीं होनी चाहिए इसमें, लेकिन बिल्कुल ये कि रिलेटिव ही हो ये भी ठीक बात नहीं है। लेकिन एक महिला की सेहत पर आपको क्या, क्योंकि ये एक तरीका ऐसा है जो कि साइंस की तरफ से इजाद किया गया, प्राकृतिक तरीका नहीं है, तो एक महिला की सेहत पर इस पर क्या असर पड़ता है, कैसे उसका कोई अध्ययन हुआ है या इस पर जो रिसर्च हुई है, क्या उसकी स्टडीज वगैरह? नहीं, सरोगेसी करे या उसका नेचुरल बच्चा हो, रिस्क बराबर है। अगर ठीक से फिट वुमन है तो वो अपना बच्चा पैदा करती है तो उसको भी उतनी रिस्क है, और अगर कोई हाई रिस्क वुमन है जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, एज ज़्यादा है, तो उसका अपना नेचुरल बच्चा होता है तो भी उसकी सेहत खराब होती है, वो हाई रिस्क होती है। सिमिलरली सरोगेसी में भी अगर हम फिट मदर को लेते हैं, यंग मदर है जो हेल्दी है, तो उसमें ऐसे बहुत रिस्क नहीं, थोड़ी रिस्क तो हर प्रेगनेंसी में होती है। देयर इज़ नो प्रेगनेंसी विच इज़ नो रिस्क, एवरी प्रेगनेंसी हैज़ सम रिस्क, द लोएस्ट रिस्क प्रेगनेंसी कैन बिकम ए डिजास्टर, सो दैट रिस्क वी आर एनीवे टेकिंग, चाहे वो सरोगेट मदर है चाहे वो नेचुरल है। बट अगर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, हम कोई मदर 4-4, 5-5 वाले बच्चा सरोगेसी नहीं कर रही है क्योंकि हमारे उसको लालच है या लोग उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो
हड्डी नहीं खाया, खाना ठीक नहीं खा पाया, बचपन से ही उसका ठीक नहीं रहा, अभी तो आपने ध्यान कर दिया बट वो अदरवाइज नहीं। तो वैसे वाले अगर लोगों को हम इंक्लूड करते हैं सरोगेसी में तो वो तो गलत है। सो मदर को या वुमन को ये देखना कि वो सरोगेट बन सकती है या नहीं बहुत इम्पॉर्टेंट है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसका केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इवन आफ्टर प्रेगनेंसी उसकी केयर बहुत जरूरी है। सो हेल्थ तो मदर की इफेक्ट होएगी अगर वो सरोगेसी कर रही है या अपना बच्चा कर रही है। अनु जी, इसमें एक पहलू और इसमें जो सामने आता है वो ये कि प्रेगनेंसी जो है वो जाहिर तौर पर वो पूरी तरह से रिस्क फ्री नहीं हो सकता, लेकिन जो सरोगेट केस होते हैं उसमें ये देखा गया है क्योंकि सामने वाला जो है वो जो किराए की कोख लेता है तो वो आता है तो वो इन्वेस्ट करता है, वो 20 लाख 25 लाख डॉक्टर्स को और उस महिला पे इन्वेस्ट करता है। तो इस तरह के केसेस में सामने आए कि उसमें महिला को कहा गया कि आप जब तक आप प्रेग्नेंट हैं तब तक आप इसी जगह पर रहेंगी, आप अपने परिवार से सिर्फ हफ्ते में एक बार मिलेंगी, आपके साथ ये आपको करना ये नहीं करना, इस तरह के डू एंड डोंट्स के जो है बनाए जाते हैं दायरे। एक सामान्य प्रेग्नेंट महिला के लिए आज सब जानते हैं, एक ज़माने में कहा जाता था कि बेब आराम करो, आज कहा जाता है कि नहीं, आपको प्रेगनेंसी में भी काम करने हैं और एक सामान्य जीवन जीना बच्चे की सेहत के लिए भी ज़रूरी है। पर सरोगेसी में अगर आप एक महिला को सिर्फ एक दायरे में बांध कर जिस तरह से रखते हैं तो आपको नहीं लगता उससे भी बच्चे की या महिला की सेहत पर भी जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मानसिक रूप से ज़्यादा, जब आपको परिवार से हफ्ते भर सिर्फ एक बार मिलने की इजाज़त दी जाती है? आई एग्री कि जब मदर सरोगेसी के लिए प्रिपेयर करते हैं, दिस इज द रोल ऑफ अ नर्स, शी इज प्रिपेयरिंग द मदर बिफोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इवन आफ्टर द प्रेगनेंसी शी इज टेकिंग केयर ऑफ। जब हम एक माँ को प्रिपेयर करते हैं कि शी इज गोइंग टू डिलीवर अ बेबी फॉर समवन एल्स और इवन फॉर हरसेल्फ, दिस इज इट शुड बी टेकन केयर कि मदर जब ऐसे प्रिपरेशन के लिए जाती है तो शी शुड नॉट बी डेविएटेड फ्रॉम द फैमिली, शी शुड बी विद द फैमिली सो दैट शी कैन टेक केयर एंड शी कैन हैप्पीली प्रिपेयर द फीटस इन द वूम। क्योंकि उसको अपनी कोख में जो बच्चा है उसको प्रिपरेशन में उसको कोई बेबी को कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज या मदर कोई मेंटली डिप्रेशन नहीं आना चाहिए, बिकॉज शी इज़ ऑलरेडी इन डिस्टर्बेंस दैट कि शी इज़ प्रिपेयरिंग द फीटस, शी इज़ ग्रोइंग द फीटस फॉर 9 months in her womb and just after the birth, as per the bill, she has to hand over the baby to the other parents. So this is first of all very disturbing thing for the mother. और अगर हम इस डिस्टर्बेंस को ध्यान में ना रखते हुए मदर को पहले ही फैमिली से डेविएट कर देंगे, so it is very difficult for her to produce a healthy child and to take care of her own health. So I disagree for this. The mother should not be deviated and away from the family. She should be with the family and it should be a part of the family as well. यानी कि उसकी नर्सिंग भी कैसे हो रही है इस दौरान, उसको भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है, नहीं तो वो भी बच्चे के लिए और उस महिला के लिए मानसिक रूप से उसके शारीरिक रूप से वो चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो जाहिर तौर पर फिर उस बच्चे की पहचान और उस बच्चे की माँ, अगर फर्ज कीजिए एक ही परिवार में आपने एक किसी जानकार महिला की को आपने इस्तेमाल किया तो उसका मानसिक पहलू और परिवार के लिए जो है वो कई तरह के कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। ये भी तो एक अपने आप में विषय है। जब तक आप अनजान है उस महिला से तो आपने ठीक है, आप गए और आपने प्रेगनेंसी के दौरान उस महिला से संबंध रहा, बाद में आप अपना बच्चा लेकर आ गए। लेकिन जब उसी परिवार में एक ऐसी महिला है जो कि जिसकी कोख में बच्चा पला, एक ऐसी महिला है जिसका बच्चा है, तो क्या ये आपको लगता है सामाजिक रूप से भी और मानसिक रूप से साइकोलॉजिकली प्रेशर हो सकता है? बहुत अच्छा किया। इस बारे में मैं कुछ आपको डेटा देना चाहूँगा। इस तरह की कुछ रिसर्चेज हैं जो यूके और यूएस में की गई हैं और उन्होंने ये देखा है कि सरोगेट फैमिलीज, जिन फैमिलीज़ ने सरोगेसी से बच्चा किया है या करवाया है, वो फैमिलीज़ तब ज़्यादा हेल्दी रहती हैं। मदर और चाइल्ड की रिलेशनशिप, पेरेंट्स और चाइल्ड की रिलेशनशिप तब ज़्यादा बेटर रहती हैं अगर कोई जो सरोगेट मदर हो वो उन्हीं के किसी रिलेटिव को बिलोंग करता हो। मतलब कोई अनजान या किसी स्ट्रेंजर के साथ अगर को सरोगेट मदर बनाया जाता है तो उस केस में उनका जो कनेक्शन है वो टूट जाता है, फैमिली का कनेक्शन टूट जाता है। बट ज़्यादातर फैमिलीज़ प्रेफर करती हैं कि उनका जो बच्चा है जो सरोगेसी के थ्रू हुआ है उसको ये बताया जाए कि ये किस तरीके से इसको पैदा किया गया है। तो जब वो बच्चा जानता है कि मुझे किस तरह से पैदा किया गया है तो वो ज़रूर जानना चाहेगा कि किससे पैदा हुआ हूँ। तो उस केस में उसके लिए साइकोलॉजिकली बहुत एक अच्छा एक कदम होगा कि अगर उसको रिलेटिव्स के या कोई जान पहचान का ही कोई अगर कोई व्यक्ति हो, कोई महिला हो जिसने उसको सरोगेट मदर का अपना रोल किया हो। स्नेहा, आप ये विषय तो एक अलग आया, लेकिन कुल मिलाकर जिस रास्ते पर आप चले आपने उस रास्ते से कई चीज़ों से आप इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन सवाल ये कि आप वे आउट क्या निकालती हैं इसका? दरअसल रेगुलेट होना चाहिए
कमर्शलाइजेशन बंद होना चाहिए, पर उसके बाद जो है उसके लिए क्या प्रावधान करने की और ज़रूरत है आपको लगता है, ताकि ये जो है इस चीज़ को हम सही रास्ते बनाएं? जब ग्लोबल स्केल में कोई मार्केट फैलता है तो उसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे हम देख रहे हैं कि IVF से सरोगेसी की शुरुआत अगर ग्लोबल नॉर्थ या डेवलपिंग कंट्रीज में हुई तो उसका जो ट्रैवल है वो ग्लोबल साउथ में इस मिलेनियम में आया और एक जगह बैन होता है, दूसरी जगह जाता है, तीसरी जगह बैन होता है, चौथी जगह पहुंच जाता है। अभी कंबोडिया के बारे में कहा जा रहा था, बट इनफैक्ट कंबोडिया की गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली सभी अपने देश में जो दूसरे देशों की एम्बेसीज हैं उनको ये संदेश पहुंचाया है कि हम भी इसे क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, तो आप अपने सिटीजन्स को कहें कि ना आए यहाँ। तो वहाँ भी ये कानून बन रहा है। पर बैन का जो एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो ये है कि बैन करने से समस्या का हल हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से हमने होता हुआ नहीं देखा है। ऑर्गन सेल की बात बार बार आती है। पहले तो मैं ऑर्गन सेल और सरोगेसी को अलग करके देखना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें महिला की बॉडी पार्ट को शरीर से बाहर नहीं निकाला जा रहा है, तो ये अलग है। पर हम सरोगेसी बिल में भी देख रहे हैं 2016 में कि एक कोशिश है, जिस तरह से 1994 में ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन एक्ट लाया गया था, तो उसमें भी ये क्लोज रिलेटिव्स का टर्म यूज़ किया गया था कि ऑर्गन सिर्फ वही डोनेट कर सकते हैं जो क्लोज रिलेटिव्स हैं। पर ये जो पिछले 20 सालों का एक्सपीरियंस है उससे ऑर्गन सेल पे अंकुश लगता हुआ तो नहीं दिख रहा। क्या हुआ, बस वो ब्लैक मार्केट बन गया। अब उसमें जो वायलेशंस हैं, किडनी चोरी की बात अभी रिसेंटली पिछले महीने बम्बई शहर से भी बाहर आई थी, तो और भी कोई रास्ता नहीं बच जाता है उसमें लगाम लगाने का। तो कमर्शियल सरोगेसी पिछले 20 सालों से जिस प्रकार से इंडिया में फैली है, इसका एक बाकायदा पूरा नेटवर्क है, जिसमें क्लिनिक तो बस एक जगह है जहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, पर इन औरतों को इसके लिए कन्विंस करना, उनकी जो देख रेख है, उनके साथ पैसों का आदान प्रदान, ये एक पूरा इनफॉर्मल नेटवर्क करता है एजेंसीज का। अब अगर हम सोचते हैं कि बस हम आज बैन का अनाउंसमेंट करेंगे और कल ये सब एजेंसीज बंद हो जाएंगी, तो वी आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। आपने एक बात जो कही वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से लोग इस बात को लेकर आशंकित है कि एक ब्लैक मार्केट जो है पूरा खड़ा हो सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि बोर्ड्स बनाए जाएंगे जो नज़र रखेंगे। तो डॉक्टर त्रिवेदी, आप, मैं हमेश कर रहा हूँ, डॉक्टर त्रिवेदी आप भी क्या, आपको भी आशंका है इस बात की? लोग कह रहे हैं कि भाई बैन लगाने से जो है ब्लैक मार्केट पूरा इसका जो खड़ा होता है। नहीं, वो तो आई थिंक हमें रेगुलेट करना ही पड़ेगा। ऐसे तो किसी चीज़ पे आप कुछ अंकुश ही नहीं लगा सकते, सब गलत हो रहा है, मर्डर्स हो रही है, तो अब आपको मना तो करना ही पड़ेगा ना। ये तो नहीं है कि कोई चीज़ मना है तो वो हो नहीं पा रहे तो इसलिए हम करें नहीं, मैं तो नहीं इसको मानती। क्योंकि रेगुलेशन तो बहुत बहुत ज़रूरी है IVF में भी, बिकॉज ये ना हम बहुत आगे बढ़ गए हैं साइंस में और हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो वो सब कुछ तो अलाउ नहीं किया जा सकता। एंड सिमिलरली फॉर सरोगेसी आई थिंक कमर्शलाइजेशन जहाँ ज़रूरत नहीं है, केवल एक्सप्लॉयटेशन हो रही है क्योंकि इंडिया में औरतें अवेलेबल हैं, तो आई थिंक दैट हैज़ टू स्टॉप। थिंग्स हैव टू स्टॉप समवेयर। ऐसा नहीं है कि हम क्योंकि हो नहीं सकता इसलिए हम करें। मैं ये बात कह ही नहीं रही थी कि हो नहीं सकता इसलिए ना करें, पर मैं ये कह रही थी कि करें लेकिन और सोच विचार के साथ करें, इस तरह से नी जर्क रिएक्शंस ना दें। क्योंकि ये जो बिल भी बना है 2013 का ड्राफ्ट जो था उसमें कमर्शियल सरोगेसी पे बैन की बात नहीं थी। 2013 से पहले इनफैक्ट ये जो ड्राफ्ट ART बिल था ये 2008 का ड्राफ्ट है, और उसमें सरोगेसी, जैसे डॉक्टर त्रिवेदी बार बार कह रही हैं कि IVF का एक छोटा पहलू है सरोगेसी, तो उसी तौर से उस बिल में ये देखा गया था। लेकिन अचानक से 2015 में सरोगेसी और IVF का कानून अलग कर दिया गया है, क्योंकि ये सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें कई सारे, जैसे UK कपल का केस बोला, उस तरह से 2008 में पहला केस आया था एक जापानी लड़की का, बेबी मांझी, उसका जन्म हुआ था आनंद में, गुजरात में, और एक जगह लीगल टसल में ये हुआ कि उसकी कई माएँ हैं, एक जिसके एग से वो पैदा हुई, एक जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया बच्चा होने का, एक जिसने उसे पैदा किया, एक जब ये सब टसल चल रहा था तब उसे अपना दूध पिला रही थी। तो ये सभी माएँ उस बच्ची की थी और अल्टीमेटली उस बच्ची को जाने दिया गया उसकी दादी के साथ। तो a child ended up having 5 mothers. So this is something that has to be addressed in a more thought out way. That will not solve the problem. स्नेहा जी, मैंने आपसे पहले भी एक सवाल पूछा था, मैं दोबारा उसको ही पूछना चाहता हूँ कि आप सोशल एक्टिविस्ट सवाल खड़े करते हैं, उसका जवाब भी तलाशने जरूरी है। मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि आप जब कहते हैं कि ये पर्याप्त नहीं है,
सवाल है कि वे आउट क्या हो, आप लोग अपनी ओर से क्या सजेस्ट करते हैं, सरकार को किस रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? दो बातें, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये बोलूँगी कि सोशल एक्टिविस्ट का जो सवाल खड़ा करने का या इंटेलेक्चुअल्स का जो सवाल खड़ा करने का रोल है समाज में, वो भी बहुत जरूरी है। मैं उसको कहते हैं उसका प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ जब हम प्रश्न उठाएं, क्योंकि आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, तो एज ए मतलब इंडियन पर्सन, एज ए कॉमन पर्सन, हम ये भी उम्मीद करते हैं कि ग्राउंड पे काम करने वाले कुछ सजेशंस भी देंगे। और उस जगह पे मैं डॉक्टर त्रिवेदी से सहमत हूँ कि इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। सो हमारे रिसर्च से जितना भी हमने सीखा है आज तक, वी आर इन फेवर ऑफ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। एक कोई चीज़ जब दुनिया में अवेलेबल होती है तब उसको बोलना कि अब वो नहीं किया जाएगा, वो बहुत मुश्किल हो जाता है करना। इसलिए बैन से परे हटके थोड़े क्रिएटिव तरीके से सोचें और इस चीज़ के एक्सेस को और मुश्किल बनाया, स्ट्रिक्टर रेगुलेशन करें। अब आपने 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई या आपने 10 साल की कैद का क्लॉज लगाया। अब क्या देखा है हमने अपने क्रिमिनल लॉ के एक्सपीरियंस से कि जब भी आप स्ट्रिक्ट पनिशमेंट करते हैं आपके कन्विक्शन रेट्स लो हो जाते हैं। ये भी स्टडीज है ना। तो आप किस तरीके से फिर इसे एड्रेस करेंगे? अगर मैं ये नहीं कह रही कि आप इसे पनिश मत कीजिए, पर आप इसको ग्रेडेड तरीके से देखिए। इसमें भी कमर्शियल सरोगेसी करना केवल मात्र अपने आप में अपराध बन जाता है, लेकिन उसके अंदर भी तो कई सारे पहलू है ना जो एक ग्रेडेड तरीके से एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है। वो तो आवर पोजिशन इज अगेंस्ट अ बैन बट इन फेवर ऑफ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। राजीव जी, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया, साथ में एक बात और इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा। सवाल ये है कि जो इस पूरे किराए की कोख देने वाली जो अगर महिलाओं का हम नज़र डालें तो वो ज़्यादातर वो हैं जो गरीब हैं, जो अशिक्षित हैं। शायद उनको ये मालूम भी नहीं होगा कि क्या कानून बन रहा है, क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या रेगुलेशन है। तो ये चीज़ कौन पहुंचाएगा वहाँ तक? और क्योंकि वो लोग इस तरह के एक सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं, तो ऐसे में उनका ब्लैक मार्केट का हिस्सा बनने का खतरा जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। लोग इसको कहते हैं। देखा गया है कि जो बेसिक एजुकेशन है, जितनी भी ये मदर्स हैं इंडिया में, पर्टिकुलरली आनंद और दूसरे, उनकी बेसिक एजुकेशन टिल सेकेंडरी लेवल है और उनकी डिज़ायर है कि फैमिली है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, तो उनकी डिज़ायर है कि उनके पास पैसा हो और पैसा ऐसा हो कि जिससे उनकी फैमिली अच्छी तरह रह सके, बढ़ सके। और इंस्टेड ऑफ बिकमिंग प्रॉस्टिट्यूट दे हैव यूज्ड दीज और उसके अंदर उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। उनको प्रॉमिस किया जा रहा है कि आपको 3 लाख मिलेगा, आपको 4 लाख मिलेगा, जबकि इन रियलिटी उनको सिर्फ खाने के लिए, पहनने के लिए और 70-80 हज़ार या बहुत हुआ 100 लाख तक पूरे 9 महीने का नहीं, पूरे 10-12 महीने का ये प्रोसेस चल रहा है। और उसके अंदर एक्सप्लॉयटेशन उनकी ज़्यादा है और बेनिफिट जो ये सेंटर्स हैं और जो मिडल मैन बने हुए हैं वो अर्न कर रहे हैं और सोसाइटी में गट फैला रहे हैं। और एक ही महिला एक दफ़ा नहीं, 3-3, 4-4 दफ़ा आगे आके ये कर रही है, क्योंकि ईजी मनी है एट द कॉस्ट ऑफ हर फैमिली, ताकि वो अपनी फैमिली की डिज़ायर फुलफिल कर सके, अपनी बच्चों की एजुकेशन अच्छी करा सके, अपना एक मकान ले सके। तो अनुज जी, ये जो एक्सप्लॉयटेशन की बात आ रही है और इसको आप एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है किस तरह से आप इसको रोक सकते हैं? खासकर क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन जो है अगर हो रहा है और महिलाएं अगर सिर्फ इसलिए कि वो अपने परिवार के लिए कुछ और कर सकें, तो सवाल बिल्कुल मैं फिर कहता हूँ उससे उनकी नर्सिंग का, उनकी सेहत का सवाल इससे जुड़ जाता है। क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, राजीव जी ने बताया, अगर एक महिला तीसरी या चौथी बार जा रही है, अपने 2 बच्चे होने के बाद वो 2 या 3 बार सरोगेट मदर बन रही है, तो ये उसकी सेहत के लिए बहुत बड़ा एक तरह का खतरा भी। ये एजुकेट करने की जिम्मेदारी किसकी? ये एजुकेशन हम नर्सेज बड़े अच्छे वे में उनको दे सकती हैं। दैट इज ऑलरेडी टोल्ड दैट बिफोर प्रेगनेंसी दिस इज आवर रोल दैट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द मदर। हम एक माँ को प्रिपेयर करते हैं सरोगेसी के लिए, हम मदर को प्रिपेयर करते हैं दैट शी शुड बी medically as well as mentally fit before she is going to adopt this method. So this is a part of a nurse that we have to find out if any medical issue is going to happen or if she is medically unfit, we should stop this thing. This is our role, this is our responsibility that we should stop if she is not medically fit. So in this way we can prevent the mother before
we are going to start themselves, we can prevent the mother from many of the risks and complications that can arise, that is post-pregnancy can happen. So this is, in this way we can guide the mother, we can prepare the mother, we can educate them about the risks, what are the complications can happen, जो भी उनको problems आ सकती है pregnancy या pregnancy के बाद उनको क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. तो इन केसेस में हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि हमें ये चीज़ें प्रेगनेंसी कंसेप्शन से पहले ही मदर को प्रिपेयर करना, सो दैट वी कैन स्टॉप दिस प्रॉब्लम्स दैट कैन हैपन आफ्टर द प्रेगनेंसी. स्नेहा, इसमें एक पहलू जिस पर हमने अब तक बात नहीं की, मैं वो पहलू भी, क्योंकि हम महिला की तो बात कर रहे हैं, इसमें वो इसका एक पक्ष है, वो बच्चा भी है जो उस महिला की कोख में जन्म लेता है. इस तरह के कई बातें सामने आए, आपने कई केसों की बात करी, इस तरह के मामले सामने आए जब वो बच्चा जो है वो कई बार ऐसा हुआ कि अगर बेबी बॉर्न हुआ, लड़की हुई, तो जिसने सरोगेट के लिए सरोगेसी के लिए आया था उन्हें छोड़ दिया. बच्चा अगर वो मानसिक या शारीरिक रूप से अगर कुछ अपंग था, लोगों ने उसको छोड़ दिया. और जो बच्चा आया नहीं है, जो बच्चा आया है, उसकी जिम्मेदारी भी अगर देखें तो वो समाज की जिम्मेदारी है, वो राज्य की जिम्मेदारी. तो उस इशू पर आपको क्या लगता है कि क्या करने की ज़रूरत है, किस दिशा में उस पर सोचने की ज़रूरत है? बिल्कुल, और इसी दिशा में सोचने की ज़रूरत है कि नो डिस्क्रिमिनेशन अप्रोच हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है. कि बच्चे को जब आप पैदा करने के लिए एक किसी कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं, अरेंजमेंट में जा रहे हैं, या कोई ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं IVF का, तो आप इसमें पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते कि बच्चा ऐसा हो. तो IVF का एक जो बहुत बड़ा खतरा है वो ये है डिज़ाइनर बेबीज़ का. आप लोगों ने सबने जो इस हॉल में मौजूद हैं ज़रूर फर्टिलिटी क्लिनिक्स के ऐड देखे होंगे, होर्डिंग्स देखी होंगी. आपने कभी ये ज़रूर सोचा होगा कि इंडिया में फर्टिलिटी क्लिनिक्स के ऐड में क्यों बच्चे हमेशा अमेरिकन दिखते हैं, क्यों नीली आंखों वाले, भूरे बालों वाले और गोरे बच्चे दिखते हैं. तो एक समाज के तौर पे हम किस चीज़ को वैल्यू करते हैं, किस चीज़ को नहीं वैल्यू करते हैं, इसमें बहुत गहराई से और रिस्पॉन्सिबिलिटी से सोचने की बात है. इसमें लड़का है या लड़की है इसके ऊपर भेदभाव, डिसेबल्ड किस तरीके की डिसेबिलिटी है उसके ऊपर भेदभाव. और यहाँ पे डॉक्टर खन्ना ने, एडवोकेट खन्ना ने एक पॉइंट रखा था कि सिर्फ चाइल्डलेस कपल्स के लिए सरोगेसी अलाउड है. पर हमने कुछ, जहाँ के मैंने कहा बिल हमने किसी ने देखा नहीं है, मीडिया रिपोर्ट से ही हम बात कर रहे हैं. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये है कि चाइल्डलेस कपल्स के लिए सरोगेसी अवेलेबल होगी, लेकिन अगर आपका एक बच्चा डिसेबल्ड है तो आप सरोगेसी कर सकते हैं. तो जब एक कानून इस तरीके की चीज़ अलाउ कर रहा है, तो क्या आप ये बोल रहे हैं कि वो बच्चा इनवैलिड है जो है, उसका होना ना होना बराबर है? तो एक हाथ पे अगर आप ये बात कहें, तो ऑन द अदर हैंड देन हाउ कैन यू से कि डोंट अबैंडन अ डिसेबल्ड चाइल्ड. तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है. तो अगर आप एक यूनिफॉर्मिटी हो, उस तरह से हम किस तरह से डिसेबल्ड बच्चों को वैल्यू करते हैं अपने समाज में, क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको सपोर्ट करने का, उन लार्जर चीज़ों पे भी बात करने की ज़रूरत है. मतलब स्नेहा, कुल मिलाकर अगर मैं ये कहूँ कि ठीक है, जैसे आपने भी कहा कि रेगुलेशन होना चाहिए, वो किस फॉर्म में होना चाहिए, वो एक डिबेट का विषय हो सकता है. क्योंकि फिर मैं इसी बात पे आता हूँ, क्योंकि बिल वो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, हम लोग जो बात कर रहे हैं मीडिया में जो रिपोर्ट नहीं, तो आपको लगता है कि एक कदम है, अब इस कदम को शायद थोड़ा सा और ज़्यादा इसको रिफाइन करने की ज़रूरत है, या आपको अगर कानून भी बना है तो उस कानून में भी हो सकता है संसद में जब बात होगी, इस पर डिबेट होगी, देश में डिबेट होगी, तो इसमें कुछ और नए प्रावधान जोड़े जा सकते हैं. पर कुल मिलाकर आपको लगता है कि जो व्यवसायीकरण रोकने की बात है या फिर जो है इसको रेगुलेट करने की बात है, इसमें कुछ आगे बढ़ना वो गलत नहीं है, उस दिशा में हम जा रहे हैं तो वो सही है. बिल्कुल प्रोटेक्शंस की सभी को ज़रूरत है, लेकिन अगर व्यापक तौर पे मैं फिर से बात ये रखूँ, मैंने दूसरे नोट को उस समय होल्ड में रखा था, जो कि वो महिलाएं हैं जो सरोगेट मदर बनती हैं. तो जैसे उसके इकोनॉमिक बैकग्राउंड की बात बार बार आती है, तो ये हमारे न्यूलिबरल मार्केट का एक फेलियर है कि लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है. अगर कोई जीवन में आर्थिक तरक्की करना चाहता है और उसके पास ऑप्शंस नहीं है, तो ये मार्केट का फेलियर है. और उसमें मैं एक चीज़ से अपनी पोजीशन यहाँ क्लियर करना चाहूँगी कि ईमानदारी चोरी के अलावा हर काम में है, राइट. सो इवन जो महिलाएं सेक्स वर्क में हैं, वो भी ईमानदारी से ही अपनी रोजी रोटी कमाती है. अगर आप देखें तो मैं प्रोस्टिट्यूशन शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करती. सेक्स वर्क इज़ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट प्रोफेशन, सो दे आर ऑल्सो इक्वली ऑनेस्ट एंड अर्निंग देयर लाइवलीहुड.
लेकिन उनसे अगर अलग करके आप सरोगेट्स को देखेंगे तो इसमें अनऑर्गेनाइज लेबर मार्केट में और भी बहुत चीज़ें हैं। डोमेस्टिक वर्क, पेड डोमेस्टिक वर्क, उसमें भी माइग्रेशन, ये सब चीज़ें अनरेगुलेटेड मार्केट में हैं। तो एक इंडिविजुअल के नाते मेरे पास क्या चॉइसेस हैं? मेरे रिसर्च में, समा के रिसर्च में जिन महिलाओं से हमने बात किया जो सरोगेट का काम करती हैं, वो बार बार एक ही चीज़ बोलते हैं कि दीदी हम इससे पहले फैक्ट्री में काम करते थे जहां उनके लेबर राइट्स की धज्जियां उड़ती हैं दिन रोज, एवरी डे ऑन एवरी डे बेसिस। यहाँ हम गुड़गांव में ये बातचीत कर रहे हैं। गुड़गांव इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ दिस होल मानेसर बेल्ट गारमेंट फैक्ट्रीज। इन गारमेंट फैक्ट्रीज की कई महिलाएं सरोगेसी में जाती हैं और वो इस ब्रेक को अपनी बॉडी को रीजनरेट करने के लिए यूज करते हैं कि फिर से मुझे गारमेंट सेक्टर में जाना है, 14-14, 15-15 घंटे की ड्यूटी करनी है और जिसमें वेजेस का कोई ठिकाना नहीं है। तो महिलाओं की राइट्स को अगर हमें देखना है तो हम ये सोच के निश्चित नहीं हो सकते कि बैन कर दिया कमर्शियल सरोगेसी, अब देश में महिलाएं एक्सप्लॉइटेड नहीं है। जाहिर तौर से इसके सामाजिक और आर्थिक पहलू जो है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि ये व्यावसायीकरण की शुरुआत ही हम ये कह रहे हैं इसलिए हुई क्योंकि भारत में एक तरह से गरीबी है, इसलिए लोग यहाँ पर एक मार्केट बन गया, तो वो तो इसके बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं ही। और पर उस दिशा में जाहिर तौर पर हम अभी बहुत डिबेट को आगे नहीं ले जाएंगे। लेकिन अंत में राजीव जी, मैं उसी बात से जो मैंने स्नेहा जी से कहा था वही आपसे, कि आपको लगता है कि एक कदम हुआ है इसमें और जो है अगर जो ज़रूरत होगी क्या क्या चीज़ें आपको लगता है और, क्योंकि जब ये पब्लिक डोमेन में आएगा एज ए लॉयर, कानून के विशेषज्ञ होने के नाते आपको क्या लगता है सरकार को और क्या क्या चीज़ें जो हैं आपको इसमें जो है इसमें प्रावधान करने की ज़रूरत आपको लगता है? अभी ये कानून नहीं बना, अभी बिल फॉर्म में कैबिनेट ने किए, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा, पार्लियामेंट की कमेटी बनेगी, सिलेक्ट कमेटीज़ बनेगी, इसके ऊपर कमेटीज़ ऑल पार्टी लेवल पे और रिप्रेजेंटेशन सारे देश भर से, सोशल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे और स्टेक होल्डर्स including medical, including these clinics, all will be called upon to make their representations, and all these representations will be considered, and on the basis of those representations, the committee will propose changes to be introduced, and then it will be sent back to the Parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha to have a debate, and after debate, the law will be implemented. So, right now it is only a proposal. Those are 8वें लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी मांझी के केस में, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ अलाउ किया था टू प्रमोट मेडिकल टूरिज्म, और मेडिकल टूरिज्म के नाम पे ये नीली आंखों वाला बच्चा, पूरे बालों वाला बच्चा क्यों है? क्योंकि इंडिया में सरोगेसी इतनी पॉपुलर नहीं है। अगर 40,000 बच्चे हुए हैं 10 साल में, उन 40,000 में 0.1% इंडियंस हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। और अकॉर्डिंगली क्या हम दूसरों के लिए काम कर रहे हैं? हाँ, हम फैक्ट्रीज लगाते हैं, व्यापार करते हैं दूसरों के लिए, पैसा कमाने के लिए, क्या सिर्फ यही बचा है हमारे लिए? चलिए, सोशियोलॉजिकल आपने जैसे कहा कि ये तो बहस की दरअसल शुरुआत है। अभी तो ये पूरा बिल जो है, ये विधेयक जो है पब्लिक डोमेन में आएगा, संसद में जाएगा, इस पर बहस होगी, बहुत कुछ इस पर होगा। लेकिन ये बहस की हमने शुरुआत करने की कोशिश की कुछ बिंदुओं पर, और अभी एक लंबा रास्ता तय करना है और उम्मीद करेंगे जो रास्ता हो वो सही हो। और इसीलिए हमने इस डिबेट को भी ऑर्गेनाइज किया था ताकि लोग भी जान सके जब ये डिबेट देश भर में शुरू होगी तो आप भी किसी न किसी फोरम पर इस डिबेट को आगे बढ़ाने में सहायक साबित हो, हम यही उम्मीद करेंगे। अब मैं ये भी चाहूँगा कि हमारा पैनल जो है आपके लिए ओपन है, आप लोगों की तरफ से सवाल आए जो इस डिबेट में हमें लगता है कि हमने छोड़ दिए, या कुछ ऐसे सवाल जो आपके मन में उठ रहे हों, उन सवालों को हमारा पैनल जो है वो लेना चाहेगा। मैं चाहूँगा आप लोगों की तरफ से। सरोगेसी एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है, जो कपल बेबी बॉर्न नहीं कर सकता वो एक लेडी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि 9 महीने बाद बाई चांस उन्होंने सरोगेसी करवा ली एक लड़की से, और 3-4 मंथ्स के बाद या 6 मंथ्स के बाद इन एनी केस अबॉर्ट हो जाता है बच्चा एक्सीडेंटली या स्लिप किसी भी कारण, तो इस कॉन्ट्रैक्ट का फिर क्या? और अब उस लेडी की जो हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ में जो भी उसको फिजिकली जो भी उसकी बॉडी, अब तो और डॉक्टर ये कह देता है कि अब वो वापस सरोगेसी नहीं करा सकती, तो इन दिस केस में क्या होगा? आपने बहुत एक वैलिड सवाल उठाया क्योंकि ये एक समस्या है, और जो पुराना अब तक हुआ
उसमें तो ये हुआ कि जब अबॉर्ट हो गया बच्चा, तो वो जो फैमिली आई थी सरोगेसी के लिए, वो जो है वो भाग गई। बहुत सारे केसेस ऐसे हुए, उसमें कुछ पैसा दिया, कुछ नहीं दिया, भाग गई। लेकिन ये एक बहुत वैलिड सवाल है जिस पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू, आपने ये बहुत इम्पोर्टेंट एक इशू उठाया। और इसमें तो हम समझते हैं ज़रूरी तौर पे मेडिकल इंश्योरेंस का एक प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बच्चा ज़ाया होने के बाद, मिसकैरेज के बाद महिला के स्वास्थ्य का जो असर है, या उसके, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो बच्चा पैदा करने का था, अब अगर मिसकैरेज हो गया तो फिर उसकी केयर की भी तो जिम्मेदारी होनी चाहिए ना, क्योंकि एक्चुअली ये कंडीशन तो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज करती है। तो ये इंश्योरेंस का जो मामला है, ये ज़रूर कानून में इंक्लूड होना चाहिए। पिछले जो ड्राफ्ट हमने देखे उनमें इंश्योरेंस का प्रावधान था, पर मिसकैरेज और अबॉर्शन दो अलग चीज़ें हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में जो एक पहलू ये है कि जब आप सरोगेसी करते हैं तब महिला के पास ये अधिकार नहीं है कि MTP एक्ट जो उसे अधिकार देता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन का, ये कॉन्ट्रैक्ट उससे वो अधिकार छीन लेता है, जो कि कहीं ना कहीं उसके फ्रीडम्स का हनन है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में होते ही कमिश्निंग पेरेंट्स को ये राइट दिया जाता है कि आप डिसाइड करें वो। तो ये माइंड चेंज करने का भी हमें लगता है महिला को अधिकार रिटेन करना चाहिए। इन एनी केस अगर वो जो महिला है जिसने सरोगेसी कराई, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी फैमिली को जो के लिए सरोगेसी कराई है, वो कुछ उनकी तरफ से कुछ अभी तक तो कुछ नहीं है। तो कानून में ये सब डिजायरेबल प्रोविजंस है जो ज़रूर होने चाहिए। इसमें जो कपल है वो अपना बच्चा पैदा करवा सकता है, लेकिन इसकी वजह से जो अनाथ बच्चे हैं, जो माँ बाप के होते हुए भी अनाथ हो जाते हैं क्योंकि छोड़ के चले जाते हैं, तो क्या वो हमेशा के लिए ही अनाथ रह जाएंगे? क्योंकि पहले अडॉप्ट करके बच्चों को उन बच्चों को अपने माँ बाप का नाम मिल जाता था कि हाँ ये हमारे माँ बाप हैं। तो क्या सरोगेसी की वजह से अब वो बच्चे भी अनाथ ही रह जाएंगे हमेशा के लिए? उनको माँ बाप का नाम कभी नहीं मिलेगा। इसलिए हमें अडॉप्शन के कानून में भी सुधार करने की ज़रूरत है। हमारे देश में ऐसा नहीं है कि लोग अडॉप्ट नहीं करना चाहते। अगर आप कारा, जो ये एजेंसी है जो देखती है, सेंट्रल अडॉप्शन रेगुलेशन अथॉरिटी, कारा की वेट लिस्ट अगर आप देखें तो वो 4-4, 5-5 साल तक जाती है। तो विलिंग कपल्स जो है उनके लिए क्यों इतना मुश्किल बनाया गया है अडॉप्शन? हाँ, ये केयर लेने की ज़रूरत है कि बच्चे चाइल्ड ट्रैफिकिंग में बच्चा ना चला जाए, और अडॉप्शन को फुल प्रूफ बनाने की ज़रूरत है। पर उसमें भी सहूलियत लाए कि 4-5 साल का वेटिंग टाइम तो बिल्कुल सही नहीं है। ऊपर से एक और बात, अडॉप्शन का जो मुद्दा है वो समाज के लिए एक व्यापक मुद्दा है। अडॉप्शन का ओनस सिर्फ जो कपल्स अपना बच्चा नहीं पैदा करते उन पर नहीं होना चाहिए। क्यों ना हम अडॉप्शन को प्रमोट करें एज अनदर वे ऑफ हैविंग फैमिली। क्यों मतलब ऑल कपल्स विद और विदाउट इनफर्टिलिटी, क्यों ना वो अडॉप्ट करना चाहे तो अडॉप्ट कर पाए। So all of these things of children who are orphaned, who are living in state care, they are collective responsibility of the society. शायद उसमें बिजनेस नहीं है, इसीलिए उसको प्रमोट करने वाले लोग भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। उसमें जो है सरोगेसी रेगुलेशन 2016 एक्ट बिल जो है इस बिल के पूरे प्रावधान हमें उपलब्ध ही नहीं हो। We don't even know that. In spite of that, I think this eminent panel has kick-started a discussion and a debate for so many issues, और इतने सारे प्रावधानों पे हमने बातचीत की और बहुत से स्टूडेंट्स ने भी इतने सारे प्रश्न किए। मुझे लगता है कि एक SGD यूनिवर्सिटी से एक किक-स्टार्ट हो गया डिस्कशन, जो मेरे ख्याल से आगे मतलब जो भी अगले पार्लियामेंट के अंदर जो डिबेट होंगी, उन सब डिबेट्स जो है उनके लिए एक हमारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन या योगदान रहेगा, क्योंकि इसको हम YouTube में डालेंगे और आई एम श्योर कि दिस विल बी रिफ्लेक्टेड एंड डिस्कस्ड एंड डिबेटेड ऑल ओवर। एंड आई वुड फाइनली लाइक टू थैंक अशोक श्रीवास्तव हु इज टेकिंग द टाइम हियर एंड ऑल आवर फैकल्टी मेंबर्स जिन्होंने इतना मतलब टाइम देकर अच्छा सा डिस्कशन एंड डिबेट को स्टार्ट किया। थैंक यू वेरी मच।